Everyone. So 11th class students, 12th class students, we will continue with the biomolecules, and in that we had seen carbohydrates, the classification of carbohydrate we had seen, and after that few reactions which confirms, है ना? Reactions which confirms the structure of glucose, reactions confirming structure of glucose or various groups which are present in a molecule of glucose. So several reactions we had seen. What are those reactions? एक बार quick revise करते हैं short में. First reaction हमने देखा था, there are the reaction which confirms the straight chain of six carbon atoms, straight chain of six carbon atoms is confirmed by the action of, हाँ जी बोलेंगे, यही तो याद रखना है, by the action of HI on glucose molecule. Product क्या मिलेगा? Giving an hexane. Normal chain hexane suggests that there are six carbon atoms which are present in a straight chain. So straight chain of six carbon atoms in glucose molecule confirmed by the action of HI on glucose, which giving an hexane as the product. That was the first reaction. Then the second reaction which we have taken that confirms the presence of carbonyl group. Presence of carbonyl group. Carbonyl group, we know carbonyl group C double bond O group, है ना? Carbonyl group in glucose molecule. In glucose molecule by the action of, यहाँ पर क्या रिएक्ट करना पड़ेगा? By the action of, यहाँ दो रिएक्शन लिया था, एक लिया था हाइड्रोक्सिल अमाइन. By the action of hydroxyl amine NH2OH giving oxime. और इसी में सेकेंड रिएक्शन लिया था, एक्शन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड गिविंग साइनोहाइड्रीन. So cyanohydrine. These two are the reactions of aldehyde or carbonyl group which is present in glucose molecule. तो क्या रिएक्ट करना था? हाइड्रोक्सिल अमाइन को ग्लूकोज से रिएक्ट करना था, ऑक्साइन मिलेगा. हाइड्रोजन साइनाइड को रिएक्ट करना था ग्लूकोज से, साइनोहाइड्रीन मिलता था. दिस इज व्हाट द सेकेंड रिएक्शन वी हैड सीन. नाउ दिस कार्बोनिल ग्रुप is aldehyde. The carbonyl group is aldehydic in nature, is confirmed. Nature is confirmed by the action of, लिख सकते हैं आप, बोल सकते हैं आप, is confirmed by the action of mild oxidizing agent. What is that mild oxidizing agent? Yes, come on, that is bromine water. तो ब्रोमीन वाटर से जब आप रिएक्ट करेंगे तो होगा क्या? जो अल्डिहाइड ग्रुप है CHO ग्रुप get oxidized to COOH group, carboxyl group, है ना? यहाँ पर क्या होगा? ग्लूकोज get oxidized to gluconic acid, यानी अल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो जाता है कार्बोक्सिल ग्रुप में
So this reaction confirms that the carbonyl group is aldehyde in nature, which is present in a glucose molecule. So that was the third reaction. Fourth reaction हमने क्या देखा था फिर उसमें? Glucose containing 5 hydroxy group. So presence of 5 hydroxy group. Presence of 5 hydroxy group is confirmed by the action of an acetic anhydride, by the action of acetic anhydride. So acetic anhydride confirms that there is, that is a reaction क्या थी? That is acetylation. Acetylation आपको याद कैसे रखना होगा? Acetylation of glucose confirms the presence of 5 hydroxy group, and acetylation is carried out by the action of acetic anhydride. Okay, और acetic anhydride react with, इसको मैं यहाँ एक बार रिएक्शन लिख लेता हूँ ये, so that you can again remember it in a better way. तो ये 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है बेटा, ये रिएक्ट करते हैं एसिटिक अनहाइड्राइड. कितने लगने वाले हैं एसिटिक अनहाइड्राइड? कल हमने आपको बताया था. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक अनहाइड्राइड? है ना, CH3CO twice O. तो दिस इज एसिटिक अनहाइड्राइड. तो 5 molecules of acetic anhydride reacts with glucose और क्या होगा? एसिटिलेशन होगा. एसिटिलेशन रिएक्शन यानी रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप. जो हाइड्रोक्सी ग्रुप का हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाता है एसिटिल ग्रुप से. तो CHOCOCH3, this is what we get. The H of hydroxy group is replaced by acetyl group. तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ एसिटिल ग्रुप यानी COCH3 एसिटिल ग्रुप, ये 4 टाइम्स हो गया. और जो लास्ट वाला ग्रुप है CH2O, इसका भी हाइड्रोजन रिप्लेस होगा एसिटिल ग्रुप से C double bond OCH3. So what we get here is penta-acetyl derivative. This clearly confirms that there are 5 hydroxy groups which get acetylated by acetic anhydride. This confirms the presence of 5 hydroxy group. फिफ्थ रिएक्शन हमको पढ़ना था और वो रिएक्शन थी कि जो अल्डिहाइड ग्रुप है वो अल्डिहाइड ग्रुप will be confirmed by the action of strong oxidizing agent, है ना. तो ये जो प्राइमर अल्डिहाइड है इसका तो ऑक्सीडेशन होता है. जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, फिफ्थ वाला ग्रुप या 6 कार्बन का जो अल्कोहलिक ग्रुप है, दैट द presence of primary alcoholic group, that is CH2OH in glucose molecule is confirmed. Glucose molecule is confirmed. ये आज की रिएक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है अभी, है ना. is confirmed by the oxidation with strong oxidizing agent, that is dilute HNO3 nitric acid. तो होता क्या है कि ये जो presence of primary alcoholic group है that get oxidized by the strong oxidizing agent.
इसके पहले भी हमने यहाँ ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडेशन किया, बट दिस ब्रोमीन वाटर is a mild oxidizing agent, so it oxidizes only aldehyde of glucose into carboxyl group, giving gluconic acid. But when we use a strong oxidizing agent like dilute nitric acid, it oxidizes aldehyde group as well as the primary alcoholic group. So here what we see, we take aldehyde यानी ग्लूकोज स्ट्रक्चर देख लो एक बार, aldehyde ग्रुप आ गया CHO 4 times secondary alcoholic group and 1 time primary alcoholic group. Now when they are treated with dilute nitric acid, oxidation takes place, dilute HNO3. तो डाइल्यूट HNO3 से जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये वाला और ये वाला ग्रुप यानी अल्डिहाइड ग्रुप और प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और ऑक्सीडाइज काय में होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में होंगे। तो अब यहाँ पर जब दो ग्रुप ऑक्सीडाइज होंगे तो दो कार्बोक्सिल ग्रुप मिलेंगे, we get dicarboxylic acid. This dicarboxylic acid formation, dicarboxylic acid named as saccharic acid, named as saccharic acid और ग्लूकैरिक एसिड भी बोलते हैं इसको। यहाँ ग्लूकोनिक एसिड मिलता है, यहाँ पर ये सैकरिक एसिड और ग्लूकैरिक एसिड, ये भी इसका नाम है, dicarboxylic acid. And this formation of saccharic acid suggests that glucose is having one aldehyde group and one primary alcoholic group which get oxidized to carboxyl group. अब आपको ये क्वेश्चन आता होगा दिमाग में कि ये भी तो अल्कोहलिक ग्रुप है, लेकिन ये अल्कोहलिक ग्रुप इतनी आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से, है ना। स्टिल मोर स्ट्रॉन्गर स्ट्रिंजेंट रिएक्शन कंडीशन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप। तो सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ऑक्सीडाइज किसको कर रहा है, अल्डिहाइड को और प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप को। तो प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप is confirmed by the action of strong oxidizing agent dilute nitric acid converting this glucose molecule into a saccharic acid dicarboxylic acid। इसी रिएक्शन को और कंफर्म करने के लिए क्या किया कि हमने जो ग्लूकोनिक एसिड बना था, ये ग्लूकोनिक एसिड यानी अल्डिहाइड ग्रुप जो है वो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड है। अब सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप लिया 4 टाइम्स एंड 1 टाइम ये प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। ये काय का फॉर्मूला है, ग्लूकोनिक एसिड, जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मिला था। अब अगर ये ग्लूकोनिक एसिड को भी डाइल्यूट HNO3 से ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ का ये प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप इट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो ग्लूकोनिक एसिड का भी प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड इट अगेन प्रोवाइड्स द सेम प्रोडक्ट। व्हाट इज दैट, dicarboxylic acid, and that dicarboxylic acid is named as saccharic acid। तो ये सैकरिक एसिड और ग्लूकैरिक acid we get here। So what is happening, ग्लूकोनिक एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप ऑलरेडी है अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज फॉर्म में। अब प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, ये ऑक्सीडाइज हो गया यहाँ पर, है ना, ये ऑक्सीडाइज हो गया कार्बोक्सिल ग्रुप में। कंफर्म्स दैट there is a presence of one primary
alcoholic group in a glucose molecule. So with the help of this six reactions, with the help of these reactions, we can confirm that glucose molecule, है ना, अब हमारा एक कंक्लूजन बन जाएगा कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यहां हम लिख सकते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल consist of 6 कार्बन एटम, यानी पहला पॉइंट 6 कार्बन एटम which are present in straight chain, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, इट possess one aldehyde functional group, one aldehyde group। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, इट possess 5 hydroxy functional group, 5 hydroxyl OH group, correct। और out of that 5, one of the hydroxy group is primary alcoholic group, so one CH2OH, that is primary alcoholic group। और जो रिमेनिंग 4 रहेंगे जो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाए, किससे ऑक्सीडाइज नहीं हो पाए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नाइट्रिक एसिड से भी जो ऑक्सीडाइज नहीं हुए, ऐसे हाइड्रोक्सी ग्रुप कौन से होंगे, सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप। तो फिफ्थ पॉइंट मिलेगा 4 CHOH ग्रुप, दैट इज सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप। तो इन सब को अब एक साथ कंबाइन करके एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन जाएगा अपने पास में, है ना। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज का ये जो मॉलिक्यूल है, इसका जब एलिमेंटल एनालिसिस किया तो इसके एलिमेंट में कार्बन एज एन एलिमेंट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ओनली 3 elements were there. Out of that 6 carbon in a straight chain, 1 aldehyde group, 5 hydroxy group। अब वो 5 हाइड्रोक्सी में कैसे हो रहा था कि एक आपको मिल रहा था प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप और 4 क्या मिल रहे थे हमको, सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप। तो ये पूरा स्ट्रक्चर अपने सामने आ रहा है। इसी सब को ध्यान में रख के वो द साइंटिस्ट named as for Emil Fischer, the scientist Emil Fischer, a German scientist, Emil Fischer has suggested a structure of glucose we call as the Fischer projection formula. We call it as Fischer projection formula। और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले से, ये देखेंगे हम लोग, है ना। उसने क्या किया है कि कार्बन को सेंट्रल एटम माना और बॉन्ड लाइन नोटेशन के हिसाब से 5 कार्बन एंड द 6th कार्बन। अब क्या किया, ये कार्बन की टेट्रावैलेंसी आना चाहिए सभी की, तो ऑल कार्बन इज टेट्रावैलेंट, बट द फर्स्ट कार्बन इज अल्डिहाइड, तो ये अल्डिहाइड ग्रुप हो गया। रिमेनिंग कार्बन आर हैविंग 4 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप एंड 1 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना एमिल फिशर के हिसाब से। अब इन्होंने इसका प्रोजेक्टाइल फॉर्मूला जो दिया वो क्या रहेगा कि कार्बन को रिप्रेजेंट ही नहीं किया, एक स्ट्रेट चेन लिया, उसमें ये 6, 3, 4, 5 एंड 6, तो ऐसे ये 6 कार्बन नोडल पॉइंट्स बना दिए, है ना। 6 कार्बन के ये नोडल पॉइंट्स बना दिए, यानी ये कार्बन हो गया, सही है। अब ये फर्स्ट कार्बन है तो इसको अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है,
तो वन वैलेंसी इज हियर। तो ये बना आपका डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, तो इसे हम कहेंगे अल्डिहाइड। तो इसको बेटर वे में रिप्रेजेंट कैसा करें, ये ऐसा लिख देते हैं CHO। अब रिमेनिंग फोर यानी सेकेंड, ये फर्स्ट कार्बन हुआ बेटा, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और यहाँ सिक्स। अब सिक्स वाले को भी क्या किया, सिक्स वाले को रिप्रेजेंट कर दिया, प्राइमरी है, डिफरेंट है, तो CHOH, ये सिक्स कार्बन हो गया यहाँ पर। तो फर्स्ट कार्बन इज अल्डिहाइड, सेकेंड इज प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, रिमेनिंग फोर आर सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप। इस तरह से उसको एक्सप्लेन कर दिया, सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप। तो ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला, वी कॉल इट एज फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किस बेसिस पे बना, ये सारी जो केमिकल रिएक्शंस हमने पढ़े उस बेसिस पे ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला मिला हमको। अब फिशर में जब ग्लूकोज को इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने के बाद हमें क्या मिला था, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन वाटर से, तो मिला था ग्लूकोनिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये ग्लूकोनिक एसिड को भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपने यहाँ पर ये अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दिया, ये अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया तो कार्बोक्सिल ग्रुप, और लास्ट वाला ग्रुप प्राइमरी अल्कोहलिक, इससे ऑक्सीडाइज नहीं होता तो वैसा ही रह गया। अब इसके बीच में 4 कार्बन लगा दीजिए, सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप। तो यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप आ गई है, तो 4OH ग्रुप सेकेंडरी आ गए। दिस जो वैलेंसी फ्री है बेटा, ये कैसे कंफर्म हो गई, हाइड्रोजन से। तो देखिए ये ग्लूकोनिक एसिड का भी फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला आ गया है ना, ग्लूकोनिक एसिड का फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। कार्बन को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसको कॉम्पैक्ट फॉर्मूला लिखना है अगर ग्लूकोनिक एसिड का, तो क्या कैसा बनेगा, COOH सिंगल बॉन्ड CHOH 4 टाइम्स और यहाँ पर CH2OH। तो ये ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मूला मिला, कौन सा, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इसी को और एक्सटेंड किया तो ग्लूकोनिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन हमने देखा था लास्ट वाली रिएक्शन, यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, इसका ऑक्सीडेशन जब करेंगे तो क्या होगा, ये ग्लूकोनिक एसिड ग्लूकैरिक एसिड या सैकरिक एसिड में कन्वर्ट होगा। सैकरिक एसिड में कन्वर्शन यानी फिर से डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बोक्सिल ग्रुप है। अब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, तो उसमें क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप गेट ऑक्सीडाइज और ये 4 आपने बना दिए सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप। देखिए कितना इजी हो गया प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखना और याद भी रखना उसको, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो अब ये स्ट्रक्चर बना आपका सैकरिक एसिड, है ना, दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ सैकरिक एसिड, अगेन वी गेट थ्रू एमिल फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो ये तीनों स्ट्रक्चर है ना, दिस इज फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज for gluconic acid and saccharic acid. This is what normally called as open structure, open chain structure of glucose. Okay, open chain structure of glucose. Let us focus this open chain structure of glucose and see the next phenomenal property of glucose. Next phenomenal property of glucose is that glucose is
ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ग्लूकोज इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। You know the meaning of optically active? याद आ रहा होगा आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी में क्या देखते हैं? द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, when a plane polarized light is passed through, तो थोड़ा सा ऑप्टिकल एक्टिविटी में क्या होता है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट याद आ रहा होगा आपको, whose rays vibrate in a single plane is what we call as plane polarized light. So this is plane polarized light. When this light is passed through a solution of glucose, तो यहाँ एक ग्लास ट्यूब में ग्लूकोज का सॉल्यूशन फिल किया हमने, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो क्या देखते हैं हम कि ये जो प्लेन ऑफ प्लेन पोलर, ये क्या है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट व्हेन ऑब्जर्व्ड थ्रू आईपीस। यहाँ पर हमने ऐसा एक आईपीस बनाया, तो क्या दिखाई दिया कि ये जो पूरा प्लेन है, दिस प्लेन इटसेल्फ गेट रोटेटेड थ्रू सम एंगल। दिस रोटेशन ऑफ plane polarized light is known as optical activity। तो ये तो पहले पढ़ा था, फिर भी अभी एक बार अपना रिवीजन हो गया। What do you mean by optically active glucose? Means glucose can rotate the plane of plane polarized light. Plane polarized light get rotated. This is what we see here. Plane polarized light get rotated through some angle and phenomena is known as optical activity। अभी तो हमने पुराना रिवाइज किया व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब क्या कहना था कि ग्लूकोज इज ऑप्टिकली एक्टिव बिकॉज इट possess 4 chiral carbon atom, 4 chiral carbon atoms, and that's why it shows optical activity। 4 chiral carbon atom। अब chiral और chiral carbon atom, chiral carbon atom क्या होते हैं? Those carbon atom which possess 4 different atom or group of atom। Let us see whether this glucose molecule is having 4 different atom or group of atom attached to a single carbon। We had numbered this carbon atom 1, 2, 3, 4, 5 and 6 carbon। Out of this 4 carbon atoms are chiral carbon atom। तो कौन से 4 हो सकते हैं? इसमें से फर्स्ट कार्बन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड है। हमको क्या चाहिए? ऐसा कार्बन जिसमें 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम रहे। यहाँ तो 2 वैलेंसी ऑक्सीजन ही खा गया, तो दिस कैनॉट बी, तो ये रूल्ड आउट हो गया। दिस कैनॉट बी अ कायरल। वैसा ही कार्बन नंबर 6 को देखो, 4 डिफरेंट दिख रहे क्या? नहीं, इसमें तो 2 हाइड्रोजन है, तो ये भी रूल्ड आउट हो गया। दिस कैनॉट बी कंसिडर्ड एज ए कायरल कार्बन। अब बच गए आपके पास 4, कार्बन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। कार्बन नंबर 2, 3, 4 एंड 5, 2, 3, 4 and carbon number 5, they are chiral carbon। Let us see for our understanding how they can be termed as a chiral carbon atom। तो कार्बन नंबर 2 chiral, इसके 4 एटम और ग्रुप ऑफ एटम को कंसिडर करना है। आप जरा देखिए, इमेजिन कीजिए, दिखाई दे रहे हैं क्या आपको? तो मैं यहाँ पर अब फर्स्ट जो कार्बन नंबर 2 है, इसमें मैं आपको समझाता हूँ कि 4 ग्रुप एटम और ग्रुप ऑफ एटम कौन से। ये एक हाइड्रोजन हुआ, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया और एक अल्डिहाइडिक ग्रुप हो गया, 3 हो गए। और नीचे का 4th कार्बन नंबर 3, तो ये पूरा की पूरा इसके लिए कार्बन नंबर 2 का हो गया कायरल कार्बन।
ऐसा ही तो कार्बन नंबर 2 इज कायरल कार्बन, कार्बन नंबर 3 इज ऑल्सो कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन एटम ये 3 कैसे होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी ग्रुप, और ये पूरा ऊपर वाला ग्रुप उसका क्या हो जाएगा, जो डायरेक्टली बॉन्डेड है, दैट वुड बी द अनसिमेट्रिकल, और नीचे वाला पूरा ग्रुप अनसिमेट्रिकल, क्योंकि सब एक दूसरे से बॉन्डेड। तो सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, likewise fourth carbon and fifth carbon, they are the chiral carbon atom present in a group, and that's why glucose is optically active compound. Okay, so as it possesses 4 carbon atom, the number of asymmetric carbon atom or chiral carbon atom, number of chiral atoms are 4. So how many optical isomers are possible? Optical isomers. How many optical isomers are possible? तो उसके लिए बेटा क्या फॉर्मूला है अपने पास में, एक फॉर्मूला बनाया था हमने, उसको लिखते हैं A is equal to 2 raised to n, where n is what, number of chiral atom। तो ग्लूकोज में कितने हैं, n, और A क्या रहेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स। A is optical isomers, number of optical isomers, और n रहेंगे chiral atom। तो चलिए ग्लूकोज में अप्लाई करें, A is equal to 2 raised to 4 since n is equal to 4। तो ये 4 जो एस्ट्रिक्स मार्क किया है, स्टार मार्क किया है ना, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, these 4 are asymmetric or chiral in nature, and therefore how many optical isomers are possible? 16 optical isomers are possible, 16 isomers of glucose are possible। out of that ये एक आइसोमर यहाँ पर एमिल फिशर ने सजेस्ट किया कि ये एक ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का बनेगा। तो ये एक पॉइंट है मल्टीपल चॉइस के लिए, आप ध्यान में रखेंगे कि हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स are possible in a glucose molecule? There are 16 optical isomers are possible. Why 16? Because it possesses 4 chiral atom in its molecule। तो ये हो गया ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड ग्लूकोज के ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब इसने क्या बोला है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ग्लूकोज is mostly available in डेक्स्ट्रो फॉर्म। अब आपको ये भी याद होगा डेक्स्ट्रो एंड लिवो रोटेशन, है ना। तो डेक्स्ट्रो रोटेशन कब होता है, जब क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो उसे डेक्स्ट्रो रोटेशन कहेंगे, और जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो उसे लिवो रोटेशन कहेंगे। तो ग्लूकोज मोस्टली अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ डेक्स्ट्रो रोटेशन। तो ग्लूकोज इज मोस्टली अवेलेबल इन डेक्स्ट्रो फॉर्म, हेंस इट इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रो फॉर्म। इसके रोटेशन का एंगल भी दिया हुआ है, इट इज। अब डेक्स्ट्रो को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, P से या फिर स्मॉल d से, और इसका बॉन्ड एंगल है प्लस 52.7 डिग्री। तो प्लस 52.7 डिग्री रोटेशन confirms that it is dextro rotatory substance, and therefore glucose is also known as dextrose, है ना। इसी का एक कॉमन नेम आ गया dextrose। Dextrose is the other name we can use for glucose, and which glucose?
डी ग्लूकोज है ना, डी ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज का डेक्स्ट्रो रोटेशन है, तो डी ग्लूकोज इज ऑल्सो नोन एज डेक्स्ट्रोज। ओके, ये स्मॉल डी एंड स्मॉल एल आर यूज फॉर रोटेशन, क्लॉकवाइज स्मॉल डी, एंटी क्लॉकवाइज स्मॉल एल, स्मॉल एल। 2 मिनट। ओके, अब एक और फिनोमिना है कि डी एल कॉन्फ़िगरेशन, ये कैपिटल डी और कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको भी समझना है हमको, डी एल कॉन्फ़िगरेशन। और इसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड बेटा कहाँ यूज किया था, इट इज अ ट्रायोसिस, है ना, मोनोसेकेराइड है, इट इज अ मोनोसेकेराइड ऑफ monosaccharide which is having 3 carbon atom, triosis, and it is aldotrioses, है ना, एल्डोट्रायोसिस। फॉर्मूला क्या बना था, C3H6O3। तो ये DL, अब देखेंगे मैंने कैपिटल में लिखा है DL कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ स्मॉल डी ऑप्टिकल रोटेशन के लिए स्मॉल डी और स्मॉल एल यूज करते थे। अब ग्लूकोज कैपिटल डी का कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, कैपिटल एल का भी कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, और वो हम कंफर्म करते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड टेकिंग एज ए पेरेंट कंपाउंड। ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या बनता है, CHO CHOH CH2OH, दिस इज ग्लिसरॉल्डिहाइड। देख लीजिए C3 है, H6 हो गए, 1 2 3 4 and 2 6 and 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, ये फॉर्मूला है ग्लिसरॉल्डिहाइड का, विच इज अ एल्डोट्रायोसिस। अब ये ग्लिसरॉल्डिहाइड डी और एल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसको कंफर्म करने का है, और ये डीएल जो भी मोनोसेकेराइड में रहेगा, वो मोनोसेकेराइड को हम बोलेंगे डी मोनोसेकेराइड और एल मोनोसेकेराइड। वो डी और एल मोनोसेकेराइड कैसे बनेगा, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो फिशर ने दिया, वो प्रोजेक्शन फॉर्मूले को हम फॉलो करने वाले हैं। तो glucose is having D and L configuration which is observed in glyceraldehyde। तो glyceraldehyde है अभी 2 मिनट। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड का बेटा स्ट्रक्चर अब हम बनाते हैं डी और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड बनाते, तो उसमें एक तो अल्डिहाइड ग्रुप है और एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। अब ये जो मिडिल वाला कार्बन है, कार्बन नंबर 2, इसमें अगर OH राइट साइड में रहे तो वो बनेगा डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो फोकस ऑन द लास्ट बट वन कार्बन, लास्ट बट वन काइरल कार्बन। तो लास्ट बट वन काइरल कार्बन जो 5th नंबर का कार्बन ग्लूकोज का होता है ना। तो हम अभी तो पढ़ रहे ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3। तो लास्ट वाला प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, इससे पहले जो रहेगा